Hello students, today we will discuss about tuples. So what is a tuple? Tuple is nothing but a built-in data types used in Python to use to store collection of data. And the three types are set, list, dictionary. I was already discussing yesterday about the list, and in future classes I will discuss about set and dictionary. I'm thinking to wind up total set dictionary today in the same class because again they all four are almost similar in use to store data. Okay, so let's see how to deal with tuple. So remember first thing, tuple is like list but it can't be changed. So I'm declaring tpl1 equal to, as I have to give here a parenthesis. In case of list, I am giving a square bracket. So what am I writing? I'm writing Satya. Then I'm writing. Then I'm writing. So now I'm trying to print tpl1. If I'm printing this, then these are the outcomes I'm getting. Suppose I will try to print tpl1 index is 0. So what will be the output? Satya is the output. That means again indexing also starts from 0 and Satya is in zero's place. So 0 is getting printed. But you can't do these things. What? Suppose I'm saying TPL1 is TPL1 of 0 is equal to no, I'm trying to assign a value in place of 0th place. And then I'm trying to print TPL1, tuple 1. So what is giving? It is giving tuple objects does not support item assignment. That means आप assign नहीं कर सकते. आप नया value ऐड करेंगे तो वो लास्ट में ऐड होगा, लेकिन किसी की जगह में ऐड नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकता टपल में, इसलिए इसको इम्यूटेबल बोला जाता है. ठीक है. देन हम लोग चलेंगे नेक्स्ट. क्या कर सकते हैं टपल के साथ? ये तो अनचेंजेबल है, डुप्लीकेट है, इट ऑल्सो अलाउज डुप्लीकेट. और हम ये भी देखेंगे कि टपल आइटम्स जो होती है इट कैन कंटेन लाइक can contain allow duplicate unsearchable tuple length. Huh. As I was using a length function, it also here also a length function will give the tuple length. Okay, तो changed tuple values. So हम बेसिकली क्या करेंगे, हम टॉपल में चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए हम एक टॉपल को लिस्ट बना देंगे. तो कैसे लिस्ट बना रहे हैं यहाँ पर? सो आई एम डिक्लेयरिंग ए tuple because I'm giving a parenthesis. So what am I doing? I'm passing this tuple. I'm using a list constructor function. This is a function. So I forgot to tell you also can create a list by writing a function named as list function. Okay. So here y is nothing but it will be a list. Okay, and the argument I'm passing a tuple. That means a tuple is passed as an argument and then it is converted to a list and y is a list. Now if I will place y of 1 is equal to QE and then I will try, then I'll do again x as tuple, then I'll print x. So let's see what's happened. Apple, kiwi, cherry. So banana is getting replaced y of 1 which is banana. So for this replacement which is not possible in case of tuple, हम कर क्या रहे हैं, हम इसको फिर लिस्ट कन्वर्ट कर दे रहे हैं. लिस्ट कन्वर्ट कर देने के बाद अलाउ कर दे रहे हैं और उसको फिर से टपल बना के प्रिंट कर दे रहे हैं. इसमें हुआ ये एक टपल था, इसमें हम वाई इसको एक लिस्ट बना दिए और लिस्ट बना देने के बाद लिस्ट तो अलाउ करती है, तो लिस्ट हम क्या किए वाई ऑफ वन मतलब बनाना की जगह हम क्यू ऐड कर दिए, फिर बैक उसको टपल बना दिए इस तरह. और अभी एक्स फिर से टपल बन गया और तब हम एक्स टपल को प्रिंट कर रहे हैं तो 8 प्रिंट आ रहा है. ये जो इम्पोर्टेंट है, लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करना, टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना, ये दो लाइन ये आपको याद रखना पड़ेगा. जैसे कि हम लिस्ट फंक्शन किए और एक्स पैरामीटर टपल पास हो गया तो ये कन्वर्ट हो गया. ऐसे ही कन्वर्सन होती है. और लूप तो लिस्ट में भी जैसे हम पढ़े थे वैसे लूप यहाँ पे भी लगेगा.
हम एक टॉपल डिक्लेयर कर दिए और फॉर एक्स इन दिस टॉपल हम प्रिंट करवा रहे हैं, तो एक एक करके वो सबको प्रिंट करता जाएगा। ठीक है। तो जॉइन भी हम पढ़े थे, तो सिंपल हम दो टपल ले लिए और उसको ऐड भी कर सकते हैं, सिंपल ऐड साइन मार के। अब मल्टीप्लाई क्या होता है, मल्टीप्लाई देखते हैं। मल्टीप्लाई कैसे होती है टपल्स में, जैसे कि हम एक टपल ले लिए और टू से मल्टीप्लाइड कर दिए, हम प्रिंट कर रहे हैं तो वो दो दो बार दिखा रहा है। देखिए, एप्पल बनाना चेरी था, एप्पल बनाना चेरी, एप्पल बनाना चेरी, मतलब एग्जैक्टली डबल कर दिया, तीन की जगह छः दिखा दिया। सो this is all about. You can also use special functions of tuples, count, return the number of items, index, search for tuple for a specified value, and return the position of where it is found. अब हम सेट के बारे में बात करेंगे। सेट होता क्या है? सेट्स आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन ए सिंगल वेरिएबल। मतलब मल्टीपल आइटम्स एक एक ही वेरिएबल में स्टोर करेगा, जैसे लिस्ट टपल वैसे ही सेट ही मल्टीपल वेरिएबल मल्टीपल आइटम्स स्टोर करती है। ठीक है। तो बेसिकली हमको क्या करना पड़ेगा, हम सेम थिंग कैसे एक्सेस होती है, कैसे ऐड करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे, कैसे ज्वाइन करेंगे, ये सब देखेंगे। तो पहले हम एक सेट डिक्लेयर कर ही लेते हैं, और लाइक हम एक सेट डिक्लेयर करते हैं, ये वाला, और उसके बाद उसको प्रिंट कर देते हैं, वही प्रिंट आ रहा है। और हम एक एक ऑपरेशन करेंगे, जैसे ऑन चेंजेबल बोला जा रहा है, उस टपल के जैसे सेट को भी आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब सेट आइटम्स आर ऑन चेंजेबल, मीनिंग दैट वी कांट चेंज द आइटम आफ्टर द सेट हैज बीन क्रिएटेड। एक बार सेट क्रिएट हो गया, आप उसका आइटम चेंज नहीं कर सकते। फिर आसेस कैसे करेंगे, आसेस फॉर लूप डाल के भी हम कर सकते हैं। फॉर एक्स इन दिस सेट प्रिंट एक्स। ओके, ऐड कैसे करना है? ऐड करने के लिए हमको दो सेट ले लिए, दो सेट के बाद हम क्या कर रहे हैं, देखिए अपडेट कर रहे हैं। मतलब इसको हम दे देते हैं, प्रोग्रामिंग में ले लेते हैं। हम कर रहे हैं, पहला एक सेट ले रहे हैं ये तीन का, दूसरा ले रहे हैं ये तीन का। इसका मतलब हम दिस सेट को ट्रॉपिकल से अपडेट करेंगे, मतलब ये एक्सटेंड वगैरह हो जाएगा। एक्सटेंड मतलब अब देखिए, पाइनएप्पल मैंगो पापाया था, पाइनएप्पल मैंगो पापाया, इसका मतलब एक्सटेंड का बेसिकल मतलब होता है ये उसमें जाके ऐड हो जाएगा। अब दिस सेट हम देखिए ये टू ऐड आइटम्स फ्रॉम अनदर सेट इनटू द करंट सेट। मतलब एक सेट से पूरा एलिमेंट उठा के एक सेट में ऐड करने के लिए हम अपडेट फंक्शन यूज करते हैं। और अपडेट फंक्शन यहाँ यूज किए हैं, उसका मतलब ट्रॉपिकल से उठेगा और दिस सेट में ऐड हो जाएगा सब। रिमूव का भी हम कर सकते हैं। रिमूव का क्या करेंगे, रिमूव अगर हमें कुछ रिमूव करना है सेट से, सो हाउ वुड आई डू दैट, हम करेंगे कैसे, हम ऐसे डॉट रिमूव फंक्शन कॉल कर देंगे, और जो रिमूव करना है, हियर मुझे बनाना को रिमूव करना है, सो आई एम यूजिंग दिस डॉट रिमूव बनाना। सो अब क्या होगा, बनाना रिमूव होके प्रिंट होगा, एप्पल चेरी प्रिंट हो रहा है। जॉइन का हम यहाँ ऐड नहीं करेंगे, हम पढ़े थे मैथमेटिक्स में यूनियन एक फंक्शन होती है, सेट मैथ में हम पढ़े थे, तो हम वो वाला यूज करेंगे जॉइन करने के लिए। तो दो सेट ले लिए हम, तीन वाले सेट वन सेट टू ले लिए, सेट थ्री जो होगा वो दोनों का जॉइन होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, सेट वन डॉट यूनियन सेट टू लिख रहे हैं। उसका मतलब ये दो का यूनियन होगा। यूनियन का मतलब तो पता है, सबका एलिमेंट हो जाएगा, तो ए बी सी एक दो तीन हो जाएगा उसका आउटपुट। ए बी सी एक दो तीन मिलकर रहेगा, लेकिन ये छह आइटम हो गया आउटपुट में। और क्या बाकी रहेगा, अपडेट तो हम पढ़ चुके थे। अब सेट का जो मेथड है, ऐड आप यूज कर सकते हैं। सभी मेथड हम इजी है, सभी मेथड डिस्कशन तो हम यहाँ कर नहीं रहे हैं, लेकिन आप सबको ट्राई कर सकते हैं। यू कैन यूज ऐड, क्लियर, कॉपी, डिफरेंस, रिटर्न। सब डिफरेंस मतलब ए माइनस बी सेट हम मैथ में करते थे, उस तरह दोनों सेट में डिफरेंस निकलेगा। ए माइनस बी होता क्या था, जो ए में होगा वो बी में नहीं होगा, वही वाला एलिमेंट होता था। उसके बाद डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। इंटरसेक्शन हम जैसे करते करते थे, क्या दो सेट में इंटरसेक्शन, जो पॉइंट मतलब जो आइटम कॉमन होता था दोनों सेट में, वो इंटरसेक्शन होती थी। इंटरसेक्शन अपडेट कर देते हैं, इज डिसजॉइंट, इज सबसेक्ट, इज सुपरसेक्ट। पॉप मतलब हम रिमूव कर सकते हैं, पॉप रिमूव भी रिमूव कर सकते हैं स्पेसिफाइड आइटम को। उसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट यूनियन। सो दीज आर द अपडेट भी होती है, दीज आर द फंक्शंस व्हिच यू कैन यूज। दीज आर द प्री डिफाइंड फंक्शन, ये लाइब्रेरी में है, आपको यूज खाली करना है डॉट ऑपरेटर के माध्यम से। डॉट ऑपरेटर यूज करके आपको ये सब करना है।
अभी चलते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी होता क्या है? डिक्शनरी की वैल्यू पेयर होती है। जैसे आप देखिए ये वाला एक डिक्शनरी है, उसमें ब्रांड है फोर्ड, मॉडल है एक मूस्टंग और ईयर है 96। तो ये हो गया तीन वैल्यू, ये हो गया तीन वैल्यू। तो इस तो लेट्स सी सो हाउ basically you can remember at the end of the class I will discuss the difference between list, tuple and dictionary. So till then let me do this for you. So ये अब क्या हो गया, एक डिक्शनरी क्रिएट हो गया जिसमें ब्रांड हो गया फोर्ड, मॉडल हो गया मुस्टंग एंड ईयर हो गया 1964। सो डिक्शनरी बेसिकली एक की और एक वैल्यू, एक की और एक वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए तीन की है, तीन वैल्यूज है। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जो हम गेट कीज करेंगे, गेट कीज फंक्शन मतलब हम पूछेंगे इसमें जो कीज है वो रिटर्न दे दे। तो वो कैसे रिटर्न दे देगा? अब देखिए एक्स एक्स इक्वल टू, हाँ उसके बाद हम प्रिंट करेंगे एक्स को। अब वो दे दे रहा है जब देखिए आप ब्रांड मॉडल ईयर जो है वो की वैल्यू की है। ब्रांड एक की है, उसका वैल्यू तो मतलब की रहेगा और वैल्यू रहेगा। तो ब्रांड की का वैल्यू है फोर्ड और मॉडल की का वैल्यू है मुस्तंग or year key का value 1964. So these three are the keys. So how am I getting these keys? By doing this, by writing this means the name of the dictionary dot keys function को कॉल करके हमें keys मिल जा रही है। ठीक है। उसके बाद हम चेंज वैल्यू करना चाहेंगे। यू कैन चेंज वैल्यू ऑफ ए स्पेसिफिक आइटम बाय रेफरिंग टू इट्स की नेम। ये चेंज हो सकती है, जैसे हम पढ़े हैं लिस्ट में चेंज हो सकता है, सेट में चेंज हो सकता है, टपल और सॉरी लिस्ट में चेंज हो सकता है और डिक्शनरी में चेंज हो सकता है, लेकिन टपल और सेट में चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब डिक्शनरी में चेंज हो सकता है तो हम उसको अपडेट कर भी सकते हैं, जैसे कि चेंज वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो कैसे वैल्यू चेंज करेंगे? अब हम करेंगे ये दो 1964 था। अब देखिए 1964 था, हम ये की वाला हटा देते हैं। हम अब की तो मिल गया, हम इसको ये कर देते हैं। अब ईयर 2018 को कर देते हैं। अब उसके बाद हम प्रिंट करेंगे दिस डिक्ट। अब उसको प्रिंट करेंगे तो वो क्या हो रहा है? अब देखिए ईयर 2018 हो गया, मतलब ये चेंज हो सकता है। लिस्ट के जैसा कोई वैल्यू चेंज हो सकता है। अब देखिए ईयर चेंज हो गया 2018, हम प्रिंट कर रहे हैं ये वाला डिक्शनरी तो 2018 दिखा रहा है। और हम ये भी कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि हम करेंगे दिस डिक्ट। हम क्या चेंज करेंगे? अभी हम चेंज कर देंगे मॉडल को। ठीक है, मॉडल को हम करेंगे, हम मॉडल को कर देंगे मुस्टंग के जैसा। हम कर देंगे डी मॉडल कर देंगे स्विफ्ट, SWIFT, स्विफ्ट डिजायर। खाली स्विफ्ट कर देते हैं। तो अब ये क्या होगा? अब ये स्विफ्ट हो गया। उसके बाद हम फिर से प्रिंट करेंगे, देखते हैं होता क्या है। अब देखिए स्विफ्ट आ गया मॉडल पे। अब इसका मतलब तो एक ही बात है, अब जो की वैल्यू लिए हैं, की तो चेंज हो ही नहीं रहा है। की ठीक है, की कांस्टेंट तो रहेगा। सो आपको क्या करना है? आपको वैल्यू चेंज करना है तो कर सकते हैं, लेकिन खाली आप डिक्शनरी में कर सकते हैं, सेट में नहीं कर सकते हैं, टपल्स में नहीं कर सकते हैं, लिस्ट पे कर सकते हैं। ठीक है। और हम ये भी पढ़े हैं, बट टॉपल में आप चेंज करना चाहते हैं तो उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, चेंज करके वापस टॉपल में कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ पर हम पढ़ रहे थे, जैसे कि हम यहाँ क्या किए, यहाँ एक लिस्ट ले लिए, एक लिस्ट ले लिए। और लिस्ट लेने के बाद हम क्या किए, उसको सॉरी ये एक टॉपल था, उसके बाद हम एक वाई को लिस्ट बना दिए, ये वाई लिस्ट बन गया। तब हम असाइनमेंट कर दिए। उसके बाद हम फिर से टपल बना दिए और वो टपल को प्रिंट करवा दिए। सो ऐसे हम कर सकते हैं। अब अपडेट हो गया, अपडेट भी हम कर सकते हैं। ऐड कैसे करना होता है? ऐड कैसे, वही जिस तरह से हम दिखाए तो कलर जो है वो, और एक कलर रेड ऐड कर देंगे। जैसे कि अभी तक तीन वैल्यू की वैल्यूज था, यहाँ पर तीन वैल्यू की था। हम इसको डिलीट कर देते हैं। हम ये देखते हैं कि अभी ये ऐड हो जा रहा है या नहीं हो जा रहा है। हाँ हो जा रहा है। अब देखिए एक दो तीन चार पाँच छः दिखा रहे हैं, मतलब कलर की और रेड उसका वैल्यू, इसकी वैल्यू तीन की वैल्यू पेयर था, अब चौथा ऐड हो गया।
सो इन दिस वे यू कैन ऑल्सो ऐड दिस थिंग्स। अपडेट भी आप ऐसे कर सकते हो। अब रिमूव करना है तो सेम वाला आपको पॉप पॉप का करना पड़ेगा। पॉप का मतलब देखिए, यहाँ अगर हम करते हैं, हम रिमूव करते हैं तो हम पॉप यूज कर रहे हैं। अब मॉडल को हम रिमूव करते हैं, उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं तो मॉडल गायब हो जा रहा है। ठीक है, मॉडल गायब हो जा रहा है। और एक बात आप याद रखिए कि जब भी आप whenever you are trying to मतलब access करना चाहते हैं, वो फॉर लूप द बेस्ट है। फॉर लूप हम पहले से भी सीखे हैं, सी++ जावा का फॉर लूप से, तो ये बहुत ही ईजी है कि आप फॉर लूप डाल दो। कैसे डाला जाएगा? ऐसे फॉर एक्स इन दिस डिक्शनरी, मतलब जो भी आप डिक्शनरी का नाम दिए हैं सब, तो उसको प्रिंट कर देंगे। तो जो जो डिक्शनरी अभी दो था, क्योंकि एक को हम पॉप कर चुके हैं, तो डिक्शनरी में खाली ब्रांड और ईयर है। ब्रांड एंड ईयर है, की वैल्यू की दिखाएगा। अब डिक्शनरी का की दिखा रहा है, वैल्यू के लिए हम अलग से करवा देंगे प्रिंट। ठीक है, कॉपी भी हो सकता है। कॉपी कैसे होती है? कॉपी एक डिक्शनरी है यहाँ और दूसरी, मतलब एक डिक्शनरी ये हो गया, और हम ये वाला डिक्शनरी को और कोई डिक्शनरी में कॉपी करवा देते हैं, तो कॉपी हो जाएगा। और उसके लिए हम डॉट कॉपी यूज करेंगे, ये वाला फंक्शन डॉट कॉपी यूज करेंगे। तो सिंपल बात हो गया, कॉपी कैसे होता है? वन यूज टू बिल्ट इन डिक्शनरी डॉट कॉपी। तो होगा क्या, यू कैन नॉट कॉपी डिक्शनरी सिंपली बाय टाइपिंग। अब इक्वल दे के आप कॉपी नहीं कर सकते, तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये डॉट कॉपी वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तब हम देखेंगे आगे चल के कि नेस्टेड डिक्शनरी होती क्या है। अब नेस्टेड डिक्शनरी में देखिए, एक फैमिली में तीन बच्चे हैं, तो चाइल्ड वन हो गया, तो उसका नेम हो गया, उसका ईयर हो गया। चाइल्ड टू, उसका नेम ईयर। चाइल्ड थ्री, उसका नेम एंड ईयर। सो अगर हमें कोई भी सर्कमस्टांस में इस तरह का सिचुएशन से डील करना पड़ा, तो हम डिक्शनरी को ऐसे की वैल्यू पेयर में रख के नेस्टिंग भी कर सकते हैं। मतलब नेस्टिंग का जनरली मतलब होता क्या है, एक के अंदर एक होती है, तो इस तरह हम नेस्टिंग ऑफ डिक्शनरीज भी कर सकते हैं। तो गाइज हम ये बोलना चाहता हूँ कि लीस्ट टपल सेट डिक्शनरी, ये चारों को आप अच्छी तरह से समझ लेने से आपको डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स के कोई भी प्रोजेक्ट में पाइथन यूज करके आप जब भी कर रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, क्योंकि हमें बेसिकली डेटा से ही डील करना पड़ेगा। तो डेटा को स्टोर करना पड़ेगा, डेटा को अपडेट करना पड़ेगा, डेटा को क्लीन करना, डिफरेंट टाइप डेटा को लेके जो भी ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो वो हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो इन दिस सिचुएशन हम ये चार यूज कर सकते हैं। जरूरत पड़ेगी तो लिस्ट यूज कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो टपल्स यूज कर लेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो ये कुछ डिक्शनरी का फंक्शन है, जो डिक्शनरी का फंक्शन है, जो बेसिकली discuss this is the clear function. What does it do? It removes all these elements from the dictionary. ये तो पता है। कॉपी क्या करती है? रिटर्न्स ए कॉपी ऑफ द डिक्शनरी। तो फ्रॉम की क्या करती है? डिक्शनरी विद द स्पेसिफाइड कीज एंड वैल्यू। गेट फंक्शन यूज करके हम की को रिटर्न द वैल्यू ऑफ द की। आइटम फंक्शन यूज करके हम क्या करते हैं? रिटर्न से लिस्ट कंटेनिंग ए टॉपल फॉर ईच की वैल्यू पेयर। तो कीज, रिटर्न से लिस्ट कंटेनिंग ओनली कीज। पॉप क्या करती है? रिमूव करती है। पॉप आइटम रिमूव्स द लास्ट इंसर्टेड की वैल्यू पेयर। अब पॉप आइटम में लास्टली जो इंसर्ट होती है वो वाला की वैल्यू पेयर को वो डिलीट कर देती है। सेट डिफॉल्ट में क्या होती है ना, रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड की। तो की डज नॉट एग्जिस्ट, इंसर्ट की विथ स्पेसिफाइड वैल्यू। मतलब की नहीं होगा तो भी एक की को इंसर्ट करके वो स्पेसिफाइड वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। सेट अपडेट होती है ये। जो इतने सारे फंक्शन जो है वो आपको धीरे धीरे याद रह जाएगा काम करने के अकॉर्डिंगली। अब देखिए, क्लास खत्म होने से पहले हम बेसिक से चारों का डेफिनेशन आपसे समझा देते हैं। अब तक लिस्ट है वो नॉन होमोजेनस है। नॉन होमोजेनस मतलब सेम टाइप का नहीं है। और क्या करती है? स्टोर्स इन द एलिमेंट्स इन द कॉलम्स ऑफ ए सिंगल रो एंड मल्टीपल रोज। सिंगल रोज में भी हो सकता है, मल्टीपल रोज में भी हो सकती है, लेकिन ये सेम टाइप का भी नहीं हो सकता है। और टॉपल भी ऐसे है, नॉन होमोजेनस है। और वो क्या करती है? वो भी इन कॉलम्स ऑफ ए सिंगल रो मल्टीपल रो में करती है। ये भी नॉन होमोजेनस है। तो सब एक ही तरह का काम करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। तो डिफरेंस बेसिकली क्या है? देखिए, ये मार्क में देखिए, इसको स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, इसको पैरेंथेसिस देते हैं, और ये दो को कर्ली ब्रैकेट देते हैं। ये तो चार याद रख लीजिए। लिस्ट को स्क्वायर देते हैं, टपल्स को पैरेंथेसिस देते हैं, और सेट डिक्शनरी को कर्ली ब्रैकेट देते हैं।
अब देखिए सब डुप्लीकेट तो अलाउ कर देते हैं लेकिन सेट अलाउ नहीं करता, डिक्शनरी अलाउ नहीं करता है। और पहले दो लिस्ट और टपल डुप्लीकेट अलाउ कर देते हैं। तो लिस्ट कैन यूज नेस्टेड एमोंगल टपल। नेस्टिंग का जब तक बात आएगा तब सब नेस्ट हो सकते हैं, मतलब एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट दूसरा लिस्ट रह सकता है। टपल्स ऑल्सो कैन बी नेस्टेड, मतलब एक टपल के अंदर दूसरा टपल रह सकती है। एंड सेट्स ऑल्सो कैन बी नेस्टेड। सो नेस्टिंग का पॉइंट ऑफ व्यू से लिस्ट, टपल, सेट्स एंड डिक्शनरी ऑल कैन बी नेस्टेड, मतलब एक के अंदर एक रह सकता है। और दूसरे जो है एग्जाम्पल्स देख लीजिए, ये एग्जाम्पल वन में एक लिस्ट डिक्लेयर किया गया है, एग्जाम्पल टू में टपल डिक्लेयर किया गया है। तो सेम आइटम है और सेम आइटम को हम यहाँ सेट बना दिए और सेम आइटम को हम की वैल्यू पेयर बना के डिक्शनरी में भी बना दिए। सो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पॉइंट तो दो तीन है लेकिन ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हम एक लिस्ट फंक्शन आती है, इसको यूज करके हम नया लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट बनाने का तरीका क्या है, हम डायरेक्ट लिस्ट का नाम देके, जैसे यहाँ देखिए हम लिस्ट का नाम कुछ भी दे सकते हैं, एलएसटी दे सकते हैं, कुछ भी दे दिए लिस्ट का नाम। तो चलिए देते हैं माई लिस्ट, माई लिस्ट वन देते हैं और कुछ क्रिएट करते हैं लिस्ट का। हम हम नंबर ले लेते हैं और ऐसे क्रिएट हो सकती है। दूसरा जो है क्रिएट, ये अब ये वाला क्रिएशन क्या हुआ, पे आप नाम डिक्लेयर कर दिए लिस्ट का और वैल्यू भी दे दिए। लेकिन ये वाला जो क्रिएशन है ये लिस्ट फंक्शन यूज करके, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। तो लिस्ट कंस्ट्रक्टर और टपल कंस्ट्रक्टर और सेट कंस्ट्रक्टर, डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर, तो ये वाला फंक्शन यूज करके भी हम नया लिस्ट बना सकते हैं। और इसमें आर्गुमेंट भी आएगा, जैसे हम एग्जांपल ये देख रहे थे। ये एग्जांपल में हम क्या देखें, ये एग्जांपल में देखिए लिस्ट, ये जो है ना ये लिस्ट फंक्शन है। लिस्ट फंक्शन में आर्गुमेंट आया है एक्स। एक्स क्या है, एक्स एक टॉपल है। एक टॉपल को अब लिस्ट फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट में डाल दिया और उसको वाई में असाइन कर दिया, तो वाई बन गया मेरा एक लिस्ट। तो एक्स था टॉपल, वाई बन गया लिस्ट, लेकिन आइटम सेम रहेगा। अब ऐसे तो हम डिस्कशन कर रहे थे, लिस्ट को टॉपल बनाए और टॉपल को भी लिस्ट बनाना है। तो जब करना है तो यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ फंक्शन, list, tuple, and sets. For everything, for list, tuple, sets, and dictionary, there are four functions. For list, it is list. For tuple, it is tuple. For set, it is set. These are the functions. Okay. How someone will get to know it is a function? If you will find a closed parenthesis beside to a name. Here this is list and there is a closed parenthesis. So this is a function actually. So these are also known as constructor because they are basically used to initiate the list, to initiate the tuple, to initiate the set, and to initiate the dictionary also. Okay. सो हम पढ़ रहे थे कि लिस्ट इज म्यूटेबल, चेंज हो सकती है। टपल इम्यूटेबल, चेंज नहीं हो सकती है। सेट इज म्यूटेबल, सेट चेंज हो सकती है। और डिक्शनरी भी म्यूटेबल है। तो सब चेंज हो सकते हैं, खाली टपल चेंज नहीं हो सकता। आपको ये याद रख के चलना है। अब ये अब आई होप आफ्टर दिस क्लास there will be clear idea on uh, how to deal with dictionaries, how to deal with tuple, how to deal with sets. So for data science projects, you have to be very careful for these four types of built-in data types. That is list, set, list, tuple, and set and dictionaries. I hope you got everything clearly. Thank you for watching.